আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখনৰ পিছত এখনকৈ ৰাজ্যত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আৰু অসমৰ উন্নতি আৰু বিকাশৰ এক নতুন পথ তেখেতে অংকন কৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুহাতেৰে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। যোৱা কালি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং ইকনমি হিচাপে আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। আজি ই এক নৱজাগ্ৰত অসম। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি পালে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষালৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে লাচিত বৰফুকনৰ আজি কুবিখাল প্ৰতিমূৰ্তি আৰু তেখেতৰ অক্ষয় কীৰ্তি আজি দেশৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিল। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি ৰাতিপুৱা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰ উদ্বোধন কৰিছিলো, যি এক নান্দনিক আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ বটদ্ৰৱাক ৰূপান্তৰ কৰিছে। সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ লগে লগে অসমত আজি অৰ্থনৈতিক নৱজাগৰণ আৰম্ভ হৈছে। ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ পৰা সাৰ কাৰখানালৈ আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ বিকাশে আকাশ চুবৰ বাবে আজি তীব্ৰ গতিত গতি কৰিছে। নৱজাগ্ৰত অসমৰ বাবে আমি নতুন নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু কৰিবলৈ উদ্যত হৈছো। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙাৰ ওপৰত ৩২ কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ, গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ৰিং ৰোড, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰতিখন জিলাতে একোখনকৈ দলং, একোখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়, একোখনকৈ মেডিকেল কলেজ আজি অসমে আকাশ চুবৰ বাবে গতি কৰিছে। কিন্তু অসমৰ এই নৱজাগৰণৰ সময়টোত আমি অসমৰ কৰুণা আৰু মমতাৰে ভৰা আমি আমাৰ জাতিৰ পৰিচয় পাহৰিব খোজা নাই। যি সময়ত আমি সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ বাবে কাম কৰিছো, যি সময়ত আমি অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছো, সেই সময়ত আমাৰ মমতা আৰু কৰুণাই আজি ১৩,০০০ শিশু মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা লৈ আহি আজি সুস্থ সবল এক যৌৱনৰ অধিকাৰী কৰিছে। ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত এই উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। আজি আমাৰ ৰাজ্যত কোনোবা শিশুৰ হৃদয়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰ তেওঁৰ লগত থিয় দিছে। কাৰোবাক বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লান্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰ एक का डबल। पहले जांच फिर निवेश। निवेश पक्का नहीं, আমি কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই। আমি তেওঁলোকৰ লগত মমতা আৰু কৰুণালৈ উপস্থিত আছো। এইখনে হৈছে নৱজাগ্ৰত অসম। এইখনে হৈছে আমাৰ সপোনৰ অসম। এইখনে হৈছে লাচিতৰ অসম। এইখনে হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসম। এইখনে হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অসম, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অসম, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম, জুবিন গাৰ্গৰ অসম। আৰু আজি আমি সেইখন অসমকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে পণ কৰিছো। আমি সেইখন অসমকে আজি ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সপোন দেখিছো। আজি অসমীয়াই ৮০০ শ্বহীদৰ শ্বহীদ স্তম্ভক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত গৈ ৰিভাৰ বেংকৰ
বাগিচাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। আজি অসমে যোৰহাটলৈ গৈ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট পাৰ্কক চাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি অসমে ধুবুৰীৰ পৰা সদালৈ শিলচৰৰ পৰা জোনাইলৈ প্ৰতিখন গাঁৱত প্ৰতিখন নগৰত হোৱা উন্নয়ন আৰু বিকাশক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। আমি আশা কৰি অনাগত দিনতো আমি এই নৱজাগ্ৰত অসমখনক আৰু আগুৱাই লৈ যাম। আমাৰ লক্ষ্য আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত অসমে সপোন দেখিব, সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব আৰু অসমে আকাশ চুব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতৰম। धन्यवाद महोदय। निस्संदेह आपके असाधारण दूरदर्शिता, कर्मोद्यम तथा अथक प्रयास के कारण ही यह भव्य प्रेक्षागार प्रकल्प का निर्माण संभव हुआ है। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंच पर उपस्थित डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री असम सरकार, पंक्ति में खड़ा हुआ आदिवासी, इस सबको अपने सहज सरल और साहित्यिक शब्दों से उन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। विदेशी कुशासन, उससे उत्पन्न हुई गरीबी और असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उन्होंने जागरूकता दी। आज मैं सिर्फ ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की एक कविता का भावार्थ बताना चाहता हूं। मैं शक्ति का पुत्र हूं, भक्ति को हृदय में धारण किए हुए हूं, मुक्ति की आकांक्षा में आगे बढ़ता हूं। मैं अर्जुन हूं, मैं गांडीवधारी हूं, मैं ही धनंजय हूं जिन्हें मृत्यु पर विजय पाई है। मैं आसाम का हूं, मैं भारत का हूं और मैं युवाओं की अग्रिम चेतना का कारण हूं। ये जो स्पिरिट था, वो स्पिरिट को ये हमारा सभागृह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगा। मित्रों, आसाम एक बहुत लंबे दुस्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आया है। 10 साल पहले के आसाम की कल्पना करिए। बंद, ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन इस आसाम में चलते थे, कितने आंदोलन चलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत विश्व शर्मा जी की, और ये 11 साल मोदी जी का शासन आज आसाम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम मिठाने के लिए। वैष्णव मठों की भूमि हो, काजीरंगा का जंगल हो या आसाम के गांवों की सीम हो, सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। ये 10 साल के अंदर और विशेषकर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने का काम। और आसाम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहां पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने का काम किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सभागार से याद कराना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों की इतनी घुसपैठ के बाद आसाम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या? आपने तो वोट बैंक की राजनीति सृजित करने के लिए आसाम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। मित्रों, आज काफी कुछ हुआ है, मगर इससे संतोष नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से
अंत में आसाम की जनता को इतना ही कहना कर जाता हूं, 10 साल से आपने कमल को, मोदी जी को, सर्बानंद को, हेमंत विश्व शर्मा को आशीर्वाद दिया है। एक और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। हम पूरा सुनिए तो, एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाएगा और वही तो रक्षा करेगा आसाम की संस्कृति की, भाषा की, संगीत की, हमारे व्यंजनों की, हमारी मिली जुली संस्कृति की। और आसाम के अंदर जितने भी हथियारी ग्रुप थे, चाहे कार्बी हो, चाहे बोडो हो, हर प्रकार के हथियारी ग्रुप से हमने समझौता कर कर शांति को प्रस्तापित किया है। 10,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में वापिस आए हैं और आसाम विकास के रास्ते पर है। यहां लाखों करोड़ रुपया का इंडस्ट्री लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। काजीरंगा देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। लसित बरफुकन का आसमान को छूने वाला स्टैच्यू लगाकर लसित बरफुकन की याद हमारे युवाओं को हृदय में प्रस्तापित करने का काम किया गया है। और इतने साल के बाद आसाम आंदोलन के शहीदों का भी उचित स्मारक बनाकर आसाम आंदोलन के शहीदों को एक प्रकार से न्याय देने का काम किया है। आज यहां पर कुछ बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने हृदय का उपचार हुआ। जन्म से डिफेक्ट लेकर पैदा हुए बच्चे के जीवन में अंधकार था। मैं सच अर्थ में हेमंत जी की ये पहल का बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद करना चाहता हूं। आज ये बच्चे जो यहां बैठे हैं अपना पूर्ण जीवन स्वस्थता से आगे बढ़ेंगे। ये भी इंजीनियर बनेंगे, डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और देश को, आसाम को आगे बढ़ाएंगे। उनका जीवन जीने का अधिकार है। असम सरकार ने मित्रों कला गुरु विष्णु प्रसाद रामा जी शर्मा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कला के माध्यम से आजादी की क्रांति को बल दिया। उस पेटिए को चुन कर खदेड़ मजदूर, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदिवासी आसाम की सबको भाषा की, अपने ही सहज सरल व्यंजनों की और साहित्यिक मिली संस्कृति उन्होंने आजादी के आंदोलन के आसाम के अंदर जितने भी हथियारी ग्रुप थे, चाहे कार्बी हो, संस्कृति हर प्रकार के हथियारी ग्रुप से हमने समझौता कर शांति को प्रस्तापित किया है। 10,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में वापिस आए हैं और आसाम विकास के रास्ते पर यहाँ लाखों करोड़ रुपया का इंडस्ट्री बढ़ता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्जुन हो, काजीरंगा देश का सबसे धनंजय पर्यटन स्थल बन रहा है। विजय लसित बरफुकन का आसाम का आसमान को छूने वाला स्टैच्यू लगाकर लसित बरफुकन की याद का हमारे युवाओं को ये जो स्पिरिट था प्रस्तापित करने का काम किया गया है। ये हमारा 2 साल के बाद सभागृह आसाम हमेशा के लिए जीवित स्मारक बनाकर आसाम आंदोलन के शहीद बहुत लंबे दुस्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आज यहाँ 10 साल पहले के आसाम की कल्पना करिए। बम ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन जिस आसाम में चलते थे, कितने आंदोलन सच अर्थ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पहल का पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत विश्व शर्मा जी की और ये 11 साल मोदी जी का शासन आज आसाम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम मिलाएंगे। आईपीएस बनेंगे और वैष्णव मठों की भूमि हो, काजीरंगा का जंगल हो, अधिकार आसाम के गांवों की सील, उनको सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया। अभिभावकों के साथ
साल के अंदर और विशेषकर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने हृदय को बहुत शांति देने वाली बात। अस्पताल में असम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठियों को यहाँ पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने के जीवन में अब हर क्षेत्र कांग्रेस पार्टी को असम इस सभागार से याद कराना चाहता हूँ मित्रों, फिर से क्या घुसपैठियों की विकास के रास्ते पर घुसपैठ के बाद असम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या मित्रों? जो घुसपैठियों को घुसने न दे, वोट बैंक की राजनीति विकसित राष्ट्र बनाने के लिए असम के अस्तित्व से ही सवाल ये सारी पहल जो आज हुई है आज, इसलिए असम सरकार कुछ हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बनाने के लिए हृदय में आज इस कार्यक्रम के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आशीष जमाऊंगा, लंबी बात भी करूंगा और मन से आपने आज समय कमल को मोदी जी को क्लिप है, इसलिए सर्वानंद को हेमंत बिश्व शर्मा को आशीर्वाद दिया है। वंदे मातरम और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। समय का हम तकलीफ है, इसलिए पूरा सुनिए तो बात कर जा रहा हूँ। एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक घुसपैठ